Welcome back, children. This is your English class MCB chapter 6, class 6. Okay, we will continue this chapter. In the video 1 we have read till this stanza, page number 57, and now from the last line of this page number 57, the wolf gave frightened yelp. Okay, children, the wolf don't know who has lived on his back, so he was very frightened and yelp means he was barking, वह भौंक रहा था. From somewhere above him in the dark night, कुछ उसके ऊपर रात में आ गया. Something had lived on his back and was clutching his neck. Okay, someone lived on his back means someone sprang on his back, उछलकर उसके ऊपर आ गया. And clutching his neck, and that thing clutched his neck, वो जो था उसके ऊपर जो कूद के आया था वो उसका नेक को क्लच कर रहा था मीन्स चॉक्ड कर रहा था. This must be the frightening leak the old man was talking about, thought the wolf, and with his tail between his legs he ran pell-mell into the woods. Okay, what happened? The wolf was very frightened and don't know about that leak, so he thought that it was very frightened creature, and he keep his tail between his leg. वो अपने आप को सिकोड़ लेता है और टेल को अपने पैरों के बीच में डाल लेता है. और पेल-मेल मीन्स बहुत ही रश मैनर में वो वुड की तरफ चला जाता है मीन्स जंगल की तरफ चला जाता है. Now the thief did not know he had landed on the back of wolf. और यहाँ thief भी को पता नहीं था वह किसके ऊपर लैंड किया है. वो इसीलिए वो भी अलग से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. He knew he had fallen on something large and cold and full of fur. उसे बस ये लग रहा था कि वह किसी के ऊपर कूदा है जो कि बहुत ही लार्ज है, कोल्ड है और फर से भरा हुआ है मीन्स रोए से भरा हुआ है. What's more, it had given a wild yelp and began to run. और इससे भी ज़्यादा उसे इस बात का डर था कि जो है वो बहुत ही वाइल्ड है, क्योंकि बहुत वाइल्डली वो एल्प किया था मीन्स बार्क किया था ना वुल्फ, और रन करने लगा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था. The thief was so frightened he couldn't even call for help. Instead, he clung to the neck of this creature that seemed to be flying through the night into the forest. इसलिए वो किसी को हल्ला भी नहीं कर सका हेल्प के लिए और उसके गर्दन को पकड़ के वो उसके ऊपर बैठा हुआ रह गया. I must be on the back of terrible leak the old man was talking about. He thought fearfully, and closing his eyes tight he hung on. Okay, children, वो भी सोच रहा था कि मैं ज़रूर लीक के ऊपर बैठ गया हूँ गलती से, और अपने आँखों को उसने बंद कर लिया और उसके ऊपर वो लटका रहा. The harder the thief clung to the wolf's neck and faster the wolf ran. और उसके ऊपर पकड़ा रहा उसके गर्दन को, और जितनी तेज़ी से उल्फ दौड़ सकता था वह दौड़ रहा था. As they got deeper and deeper into the forest, वो बहुत ही अंदर चले गए फॉरेस्ट में. Branches of trees swung low and scratched the thief's face. जितने भी ब्रांच थे पेड़ के वह नीचे आ चुके थे और उसने पूरे थीफ के फेस को स्क्रैच कर दिया. Finally he felt a big branch sweep past. तभी उसने देखा कि ये बहुत ही बड़ा ब्रांच पास हो रहा था. He caught it. उसने उसे पकड़ लिया and swung himself up into a tree. और अपने आप को ट्री के ऊपर swung कर लिया, छलांग मार लिया. But the wolf ran on and on until he came to his cave at the farthest end of the forest. लेकिन वुल्फ दौड़ता ही रह गया जब तक कि उसका केव नहीं आ गया जंगल में. When he finally stopped, जहाँ वह रुक गया, he realized that thing on his back was gone. अब वो रियलाइज कर रहा था कि जो उसके ऊपर बैठ गया था वो अब उसके ऊपर नहीं है. The leak was dropped off. Okay, children, वह बहुत ही राहत का सांस ले रहा था कि लीक उसके ऊपर अब नहीं है.
Somewhere he thought and he sighed a great sigh of relief. अब वह बहुत ही खुश था कि चलो मेरे ऊपर जो लीक था वो चला गया, अब वो मेरे ऊपर नहीं है, और उसने बहुत ही राहत की सांस ली. Early morning, the wolf went to his friend, the tiger. Mr. Tiger, Mr. Tiger, I had a terrible fright last night, he said, panting at the very thought of it. Do you know what kind of creature a leak is? जब वो अपने दोस्त के पास पहुंचा, टाइगर के पास, तो उसने कहा कि बहुत ही फ्राइटेड नाइट मेरा कल बीता है, और बहुत ही वो दुखी था. और उसने कहा कि क्या तुम लीक के बारे में जानते हो, कोई ऐसा क्रिएचर है तुम्हारी नज़र में लीक? द टाइगर शुक हिज हेड. वह टाइगर अपने सर को हिलाता है. वाई आई बिलीव आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग कॉल्ड अ लीक, ही सेड. व्हाट इज इट? ओके, टाइगर ने कहा कि नहीं, मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना. कौन है वो? It is something human beings fear more than anything else in this world, said the wolf. And do you know, one of those terrible creatures jumped on my back last night. उसने क्या कहा? यह जरूर ही कोई ऐसा है जो कि ह्यूमन बींग को डरा के रखा है सब पूरे एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड. इस वर्ल्ड में जो भी कुछ है, सबसे ज़्यादा डरावना ह्यूमन बींग के लिए यही है. एंड वो टेरिबल क्रिएचर जो था वो लास्ट मेरे बैक पर था लास्ट नाइट. आई रैन ऑल नाइट विथ दिस लीक हैंगिंग ऑन माई नेक. ओके, उसने क्या कहा? वह पूरी रात उसे पीठ पर रख के वो रात भर वो उसके पीठ पर लदा हुआ था, वो उसको लेके दौड़ रहा था, और वो उसके गर्दन को क्लच किए हुए था. ऑलमोस्ट वो उसे लग रहा था कि ऑलमोस्ट वो उसे मार ही देगा. द टाइगर ग्रंटेड सिंपैथेटिकली. वह बहुत ही सहानुभूति से ग्रंट किया. हाउ टेरिबल दैट मस्ट हैव बीन, ही सेड. उसने कहा जरूर ही बहुत ही टेरिबल रहा होगा. द वुल्फ टुक अ डीप ब्रीथ एंड वेंट ऑन. वो बहुत ही डीप ब्रीथ लिया, सांस लिया, और आगे बढ़ा. द लीक ड्रॉप्ड ऑफ समवेयर आफ्टर आई गॉट इनटू द फॉरेस्ट. उसने क्या कहा कि जब मैं फॉरेस्ट के अंदर आ गया तो वो कहीं गिर गया. इफ़ वी डोंट कैप्चर इट नन ऑफ अस विल एवर बी सेफ. यदि हम लोग उसे नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा. विल यू हेल्प मी टू फाइंड इट. क्या आप मेरी मदद करेंगे उसे पकड़ने में? द टाइगर नॉडेड. टाइगर ने हाँ कहा. सर्टनली आई विल हेल्प, ही सेड. बिसाइड्स आई वुड लाइक टू सी. उसने क्या कहा? लेकिन मैं उसे देखना चाहूँगा. A leak looks like. कैसा वो दिखता है? I wonder if it has two heads. यदि उसके दो सिर होंगे तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होगा. And so the tiger and the wolf set off to look for the terrible leak. इसलिए वो दोनों फिर निकल चले टेरिबल लुक को खोजने के लिए. As they prowled through the forest, a monkey sitting in a tree peered through the leaves and saw them below. मंकी भी ऊपर बैठा हुआ था, वह उन लोगों को देख रहा था. से मिस्टर टाइगर, मिस्टर वुल्फ, ही कॉल्ड. वेयर आर यू गोइंग विथ सच वरीड फ्राउन्स ऑन योर फेस. उसने क्या कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतना चिंता फेस पर लेकर? वी आर सर्चिंग फॉर अ थिंग कॉल्ड अ लीक. उसने क्या कहा कि हम लोग सर्च कर रहे हैं जिसका नाम लीक है. इट इज़ समथिंग सो टेरिबल दैट ह्यूमन बींग फियर इट मोर देन अ थीफ और अ वुल्फ. इट इज़ द मोस्ट फियरसम थिंग इन द वर्ल्ड and we cannot live safely in this forest until we capture it. Okay, उसने भी उसे पूरा कहानी सुनाया और कहा कि उसे पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग सेफ नहीं हैं. A leak asked the monkey, why I have never heard of such a creature, you must be mistaken. उसने कहा कि मैंने लीक के बारे में कभी नहीं सुना, जरूर तुम गलती कर रहे हो. But the wolf shook his head. No, no, I am not mistaken, for this very creature clutched at my throat and rode on my बैक ऑल द वे इंटू द फॉरेस्ट लास्ट नाइट. ओके, उसने कहा कि नहीं, मैं मिस्टेक नहीं कर सकता. वह पूरी रात मेरे पीठ पर था और उसने मेरी गर्दन को भी दाब के रखा था. इट ड्रॉप्ड ऑफ समवेयर एंड मस्ट बी हाइडिंग नियर अस दिस ए वेरी मिनट. उसने कहा कि पूरी रात मेरे ऊपर था और यहीं कहीं गिरा है और अपने आप को छुपाए हुए है. नाउ द मंकी हैड सीन द वुल्फ रनिंग थ्रू द
forest the night before with the thief hanging on to his neck. ओके, उस मंकी ने रात में उस उल्फ को देखा था जो कि फॉरेस्ट में दौड़ रहा था, और उसने ये भी देखा था कि उसके ऊपर एक चोर बैठा हुआ है जो कि उसके गर्दन को पकड़े हुए है. He suddenly realized that this terrible thing they feared was only a human being. ओके, वो समझ गया कि यह कोई और नहीं बस एक ह्यूमन बींग है जिससे ये लोग डर रहे हैं. सो ही सेड इन अ लाउड ब्रैगिंग. वह इसीलिए बहुत ही लाउडली डिंग मारकर उसने कहा, डिंग हाँकने लगा. वाई इफ दैट इज द थिंग यू आर सर्चिंग फॉर, देयर ही इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ओवर देयर. ओके, उसने कहा, क्या तुम उसे ढूंढ रहे जो यहाँ ब्रांच पर बैठा हुआ था. आई शैल गो एंड कैप्चर हिम सिंगल हैंडली इफ यू वॉन्ट मी टू. ओके, उसने क्या कहा, यदि तुम लोग चाहोगे तो मैं उसे खुद ही अकेले ही पकड़ लूँगा. श्योर एनफ देयर नो वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ऑफ ए ट्री.